کسی کے کلام میں اللہ کی مخلوق میں اتنا حسن نہیں ہے جتنا کلام مصطفیٰ جان رحمت میں حسن ہے، اور اسلام کو جتنا خوبصورت انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، اتنے خوبصورت انداز سے اللہ کی مخلوق میں کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا۔ دنیا مادیت کی طرف جا رہی ہے، دنیا مٹیریل کی طرف جا رہی ہے، دنیا آلات کی طرف جا رہی ہے، دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، دنیا اسباب کے اندر ڈوب چکی ہے، دنیا اللہ رب العزت سے غافل ہو چکی ہے، لوگ قرآن کی تعلیم کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے ہیں، لوگ اسلام کی تعلیم کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے ہیں۔ یہ سارے حالات کے اندر اگر ہمیں صحیح طور پر کہیں سے رہنمائی مل سکتی ہے تو مکین گنبد خضرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مل سکتی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی زندہ ہیں اور پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہے، بلکہ اگر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی تفسیر کے طور پہ دیکھیں تو زندگی کی کل رانائیاں جس شان سے تھی اس سے بڑھ کر آج ان کی زندگی کی رانائیاں ہیں، اور وہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، وہ ہمارے سکھ کو بھی دیکھتے ہیں، وہ ہمارے دکھ کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے سکھ کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر وہ بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر وہ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اپنا غم گسار ہو یا نہ ہو، ہمیں اطمینان ہے کہ گنبد خضرا کا مکین ہمارا غم گسار ہے۔ دنیا میں ہم سے کوئی وفا کرے نہ کرے، ہمیں اطمینان ہے جانے وفا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائے جو رسول ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہو، جو رسول اللہ اکبر ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہو، جو رسول اللہ اکبر ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو، اتنا کہ قرآن کی آیہ کریمہ اشارہ کرتی ہے وہ رسول اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اندازہ تو فرمائے وہ رسول جو اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرے، وہ رسول جو ہماری بے قراریوں پر ہم سے پہلے بے قرار ہو جائے، وہ رسول جو ہماری بے چینیوں پر مضطرب ہو جائیں۔ اندازہ فرمائے ایسے رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اکبر بے چینیاں ہمارے گھروں کے اندر ہے، بے قراریاں ہمارے گھروں کے اندر ہے، تباہی اور بربادی کا شکار ہم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور تو ہم سے قریب ہیں مگر ہم حضور سے دور ہو چکے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو چکے ہیں۔ آئیے پھر ضرورت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے کی، اور حضور کی قربت کس طرح ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے قریب آؤ۔ اللہ اکبر! آج ہم لوگ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے فرامین سے دور ہو کر کے گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنی امت کو پکار کر کے ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے پیغام عطا فرما رہے ہیں۔ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ آئیے بہت طویل کوئی گفتگو کرنے کی بجائے اختصار کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل فرمایا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ حدیث صحیح ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، حدیث پاک کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम से वो नसीहत तलब करता है, हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमा दे, आका मुझे कोई नसीहत कर दे। अल्लाह अकबर। अब आप तसव्वुर करें, हम गोया के हल्द्वानी में नहीं हैं, बल्कि यूं तसव्वुर करें कि मदीने मुनव्वरा की मुअत्तर फजाओं में, तसव्वुरात की कायनात में हम मौजूद हैं। कोई आने वाला आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल सजी हुई है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई नसीहत तलब करता है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नसीहत करते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को नसीहत फरमाई, और किस तरह नसीहत फरमाई? दुरूद शरीफ पढ़ने आप, ये सही कर दो, इसको इको वगैरह ना रखें, सिर्फ ये कि मेरी आवाज पहुंच जाए बस। ये जो आवाज टकरा रही है इसको बंद कर दें और आवाज खोल दें उसको, फिर आवाज टकरा रही। एक बार सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें सब बुलंद आवाज से। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। ये इकों की ज़रूरत नात खानों को होती है, हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारी बात सिर्फ पहुंच जाए ना वहाँ तक, लोगों तक बस काफ़ी है। बिल्कुल इसको बंद कर दें, ये जो आवाज़ टकरा रही है बाज़गश्त को बंद कर दें। दुरूद शरीफ पढ़ें बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व आशिकों की तरह मिलके दुरूद शरीफ पढ़ें आप। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नहनु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोल दीजिए रहिए दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर दुरूद शरीफ पढ़ने आप। रब्बे सल्ले वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि अजमईन सलातन व सलामन। चलें आप तवज्जो इस तरफ फरमा लें। ये आवाज़ जो टकराएगी ना तो जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगी बात कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और तो अब तसव्वुर में लाएं, थोड़ा तसव्वुर करें। अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो। माइक ऑपरेटर साहब इसका इको बंद कर दें, इको बंद कर दें, सबकी ख्वाहिश है इसकी आवाज़ साफ कर दें। अब कोई आप हजरात पब्लिक में से ना कहें, एक बार दुरूद शरीफ सब आशिकों की अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो वो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीहत के लिए आया कि हुजूर मुझे नसीहत कर दें। हम लोग भी अक्सर अपने बुजुर्गों से नसीहत चाहते हैं और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उसको नसीहत फरमा रहे हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नसीहत को सैयदना इब्ने अब्बास हिब्रुल उम्मा रईसुल मुफस्सिरीन हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा वो सुन रहे हैं और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनको कहते हैं उस बंदे को कि 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो। 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो, इसलिए कि कदरे नेमत बादे ज़वाल। नेमत की कद्र इंसान नेमत खोने के बाद करता है। और याद रखना, जिस भी नेमत की नाकदरी करोगे वो नेमत अल्लाह तुमसे छीन लेगा। इसलिए कि जो बंदा नेमत की कद्र करना छोड़ देता है अल्लाह तबारक व ताला उससे वो नेमत छीन लेता है। इसलिए नेमतों की कद्र करो। और ख़ास तौर पे अल्लाह के रसूल ने 5 नेमतों का जिक्र फरमाया। 5 से पहले
पांच को गनीमत जानो, उसमें पहली नेमत अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हयातका क़ब्ला मौतिक, कि जिंदगी को मौत आने से पहले गनीमत समझो। याद रखना, आज जिंदगी की अहमियत नहीं, जिंदगी कितनी कीमती है, जिंदगी का सरमाया कितना कीमती है, अंदाजा फरमाए। अल्लाह अकबर, जिंदगी इतनी अहम है अल्लाह अल्लाह कि अगर कोई इंसान के मरने का खतरा है तो उलमा फरमाते हैं कि नमाज तोड़ करके उसकी जान को बचा लिया जाए। देखिए इंसान की जिंदगी कितनी कीमती है। और याद रखें, इंसान नमाज क्यों पढ़ रहा है? जिंदा है तो नमाज पढ़ रहा है। इंसान उम्रा क्यों कर रहा है? जिंदा है तो उम्रा कर रहा है। इंसान हज क्यों कर रहा है? जिंदा है तो कर रहा है। अल्लाह अकबर, जिस दिन ये जिंदगी का कीमती सरमाया इंसान के पास से खत्म हो जाएगा, उस वक्त तो इंसान नेकी की अहमियत तो जान लेगा, नेकी की कद्र तो जान लेगा, मगर उसको नेकी करने का मौका नहीं होगा। याद रखना, मरने के बाद इंसान 2 रकात नमाज की तमन्ना करेगा। अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मुझे मौका दे दिया जाए ताकि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं दुनिया में लौटकर, दुनिया में जाकर, मगर उसको मौका नहीं मिलेगा। मेरी कौम के जवानों, कितना खूबसूरत सरमाया है जिसे जिंदगी कहते हैं, जिसे हयात कहते हैं। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही, वो अल्लाह, वो जव्वाद करीम, वो हर नेमत को बार बार देता है, मगर वो जव्वाद करीम ने कानून बना दिया कि दुनिया में एक मर्तबा भेजेंगे, दुनिया की जिंदगी एक मर्तबा अता करेंगे, दोबारा किसी को नहीं देंगे। ये दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो, हयात को गनीमत जानो, इससे पहले कि मौत आ जाए और मौत की तलवारें हमारे सरों पे लटक रही है। मैं अपने जवानों से कहता हूं, नुक्कड़ों पर बैठकर टाइम पास करने वालों, अल्लाह अकबर, चौराहों पर बैठकर वक्त की बर्बादी करने वालों, होटलों पर बैठकर पिकनिक के नाम पर वक्त को जाय करने वालों, वक्त की कद्र करो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, मेरे उस्ताद फरमाते हैं, यानी इमाम गजाली फरमाते हैं, मेरे उस्ताद फरमाते हैं, वक्त वो 2 धारी तलवार का नाम है, अगर तू उसको सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो तुझे काट करके रख देगा। अल्लाह अकबर, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे उस्ताद ने कहा, आपके उस्ताद फरमाते हैं कि सूरतुल अस्र की तफसीर मैंने बर्फ बेचने वाले को देख करके समझी। वो किस तरह से बर्फ बेचने वाला, उसको नुकसान के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बर्फ बेचने वाले को नुकसान के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, गाफिल हुआ बर्फ पिघलता चला जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। होशियार बर्फ बेचने वाला कौन है? अल्लाह अकबर, कि जल्दी जल्दी पिघलने वाला बर्फ बेचकर न खत्म होने वाले न पिघलने वाले सरमाए को इकट्ठा कर ले। जैसे बर्फ फैक्ट्री से निकलने के बाद पिघलता ही रहता है उसी हवा लगने से, उसी तरह इंसान मां के शिकम से निकलने के बाद हर हर लम्हा मौत से करीब हो रहा है। मेरी कौम के जवानों, जिंदगी किसी की भी बढ़ नहीं रही है, बल्कि हर इंसान की जिंदगी घट रही है। एक सेकंड काटा आगे बढ़ता है, हमें मौत से करीब करता है, एक घंटा आगे बढ़ता है, हमें मौत से करीब करता है, एक दिन आगे बढ़ता है, हमें मौत से करीब करता है। अल्लाह के बंदो, वक्त की कद्र करो, इसलिए कि हर आने वाला दिन इंसान से कहता है, ऐ इंसान, मैं आया हूं, मेरे अंदर कुछ अच्छा अमल कर ले ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में गवाही दूं। अगर तू अच्छा अमल न कर सकेगा तो वो भी मैं गवाही दूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों।